میں تو یہی کہتا ہوں یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ جو ہے نا عمران خان اس کو جو ہے نا استعفیٰ دے دیں گے، 2 دن میں جو ہے نا استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کہنا، اللہ تعالیٰ نصیحت دے اس کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اچھی نصیحت دے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی ہے، 1 دن گزر چکا ہے کہ استعفیٰ دیں، 1 دن اب رہ گیا، تو کیا کہتے ہیں خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ یہ جب سے آیا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ 1 دن ہے 2 دن ہے، یہ دنیں جو ہے نا اس کا ختم نہیں ہو رہے۔ باقی عمران خان صاحب جو ہے نا اس طرح لیڈر ہمیں کبھی نہیں ملے گا اور نہ آئے گا، اور یہ جو ہے نا کرسی کی لالچ میں جو ہے نا اس کے 22 نمبر بنگلہ جو اسلام آباد کا ہے وہ اسے اٹھایا ہے، اور اس کا ابھی اس میں کوئی کرسی مرسی یا کوئی اس کو نہیں دے رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ مولوی سارا مولویوں کا نام بدنام کیا ہے اس نے، اور عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہم چاہیں عمران خان کو جا کے گھر سے اٹھا لیں تو کیا کہتے ہیں ابھی سوال؟ نہیں، کوئی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا، یہ کوئی گڑیا تو نہیں ہے کہ اس کو دکان سے جو ہے نا جا کے خریدو گے یا دکاندار سے اٹھاؤ گے، وہ خان ہے، عمران خان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب جو ہے نا، مولانا صاحب کو ابھی اسی حکومت میں اگر اس کو تھوڑا کچھ دے دے تو بس وہ کہے گا عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، مگر اب کچھ بھی اس کو نہیں ملا ہے تو کہتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ہاں، یہ سب حکومتوں میں نے اس طرح رولہ اس نے بنایا ہے، نواز شریف کی دور میں، زرداری کی دور میں، مشرف کی دور میں، تو یہ اس کا ایک کرسی کے لیے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ مہلت دیا کہ 2 دن میں استعفیٰ دو، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل نہیں دے سکتے استعفیٰ دے دیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے عمران خان کو اس لیے چنا تھا کہ چوروں کو پکڑنا ہے، عمران خان نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ چوروں کو نہیں پکڑو۔ تو کیا خان صاحب مولانا کے کہنے پر استعفیٰ دے دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں دیں گے، عوام سے پوچھیں گے پھر استعفیٰ دیں گے۔ عوام کا ابھی رائے نہیں ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ مولانا صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو عمران خان کو جا کے گھر سے گرفتار کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ سوچ ہے اس کی، ہاں اس کی سوچ ہے، یہ وہم ہے، ختم کر دے یہ وہم۔ عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مولانا صاحب نے بیان دیا کہ اگر 2 دن میں استعفیٰ نہ ملا تو ہم کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ حکومت ہے، آرمی ہے، پولیس ہے، نظام ہے، انتظامیہ ہے، وہ سمیٹ لیں گے سارا ٹھیک ہے، تو اگر مولانا کے کارکن آگے بڑھے تو آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کا جو کارکنان ہے نا وہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو لایا ہی پٹھانوں نے ہے، اور انشاءاللہ پٹھان جو ہے نا شانہ بشانہ ان کے ساتھ کڑے رہیں تو گے۔ کیا مولانا صاحب کے کارکنوں کو روکنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے؟ اس کے روکنے کے لیے آرمی ہے نا، اس کے لیے ہاں، وہ سرکاری ادارے ہیں، سرکاری وہ ادارے کام ہیں، ان کا ہے، حکومت کا ہے۔ حکومت کا ہے، لیکن عمران خان کو ہم نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ پورا کر کے جائے گا، اور انہوں نے ساروں نے باری باری لی ہے، اب اس کی بھی باری ہے، اس کی بھی باری آنے دو۔ تو مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی باری گزاری ہے، اب عمران خان کی باری ہے، 5 سال صبر کر لیں اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے۔ اصل میں ہمارے پاکستان میں بہت عالم ہے، زبردست عالم ہے، ان کا نام بھی اس کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی وہ وزارت کی لالچ میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، انہوں نے عمران خان سے استعفیٰ کیا ہے، عمران خان سے مطالبہ کیا کہ 2 دن کی مہلت ہے، ہمیں استعفیٰ دے دو، 1 دن گزر چکا، 1 دن پیچھے باقی ہے، تو کیا مولانا صاحب نے جو یہ اپنا مطالبہ کیا اپنے اس مطالبے میں کامیاب ہو جائیں گے یا عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ مولانا صاحب جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس میں مولانا کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، ملک اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے، خدا نہ خواستہ مطلب فوج کو ٹیک آف کرنا پڑ جائے، یہ بہت غلط بات ہوگی، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ ابھی حالات ٹھیک ہوئی ہیں الحمدللہ۔ 18-20 سال سے جو چل رہا تھا وہ طالبان والا دہشت گردی والا چکر، الحمدللہ ہماری پاک افواج نے جو بھی حکومت آئی ہے اس کا تعاون رہا ہے، تو الحمدللہ یہ مسئلہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ ابھی جو یہ لگ رہی ہے اپنا بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ وہ جو باڑ لگ رہی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ ہماری جو معیشت ہے الحمدللہ ابھی فکر بتا رہے ہیں جو معاشیات کے ماہر ہیں کہ الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ چل پڑے ہیں۔ دیکھیں ہم کب تک عالمی بینک سے یا جو
एशियाई तरक्याती बैंक है या बाहर के जो मुल्क हैं हमसे इमदाद लेते रहेंगे। हमें जो कुछ भी करना है हमने खुद करना है। अपने घर की बंदा मिसाल ले ले, ये तो मुल्क है, तो उधार पे हम नहीं चल सकते, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। और जो कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह कौम तैयार है देने के लिए, वो इंशाल्लाह देगी। इसके लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब देखें, ये कहते हैं ना कि मुल्क में महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल महंगाई हो गई है, लेकिन ये भी देखा जाए कि महंगाई हुई क्यों है। जब कोई मसला होता है, जो जुर्म होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो वो सबसे पहले थाने में जाता है, वो देखते हैं कि वजह अनाद क्या है। तो महंगाई इस वजह से हुई है कि ये जो पहले हुकूमतें गुजरी हैं, जो उन्होंने कर्ज़े लिए हैं, वो कर्ज़े मुल्क में जो प्रोजेक्ट लगाने चाहिए थे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, जिसमें कुछ रिटर्न आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो जिसके लिए हमें बार बार कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। अब रोटी ना खाए बंदा गुजारा नहीं हो सकता, तन पे कपड़ा चाहिए और खाने के लिए रोटी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी मतलब गैर ज़रूरी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो ज़रूरियात हैं, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, तब इंशाल्लाह हम जाके तरक्की कर सकते हैं। अब दरमदाद हमारी कम हो जाए। पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ट्रेड पे ज़ोर दिया है, इंडस्ट्री पे ज़ोर नहीं दिया कि इंडस्ट्री लगाएं। अब इंडस्ट्री लगती है तो उसमें गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, उसमें जो चीज़ तैयार होगी हम बाहर भेजेंगे, उसका हमें डॉलर मिलेंगे, जब मुबादला आएगा, तो इसलिए हम तब बेहतर हो सकते हैं। हम ट्रेड से बेहतर नहीं हो सकते। अब जो हुकूमतें पहले गुजरी हैं उन्होंने ट्रेड पे ज़ोर दिया है। अब नवाज शरीफ की हुकूमत में, ज़रदारी की हुकूमत में, आप यकीन करें कि वाघा बॉर्डर से प्याज, सब्ज़ मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, ये चीज़ें आ रही थी। अब ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब इसमें तो पाकिस्तान को नुकसान है। थोड़ी हैं, बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क ज़री मुल्क होती हैं, हम पैदा करते हैं, थोड़ा होता है लेकिन होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब लेज़ आ रही है, ऐसे जो इसके अलावा ये फूड आ रहा है, ये कुत्तों का जो है ना फूड, ये बाहर से आता है। मैंने एप्पल स्टार में, बेरिया में, पिंडी में देखा है कि वहाँ पे मलेशिया से पानी आ रहा है, पीने वाला पानी। हमारे मुल्क में पानी नहीं है। अब ये देखें ना, ये चीज़ें जो है ना, ये गैर ज़रूरी चीज़ें, इनको बंद होना चाहिए। अब वो पानी बंदा ना पिए तो क्या बंदा नहीं जिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क में पानी वाफर है, अल्हम्दुलिल्लाह पीने का पानी साफ़ है। तो अगर फ़र्ज़ करो कोई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मतलब वो नहीं साफ़ है, तो एक सादा सा घरेलू टोटका है, आप उसको गर्म कर लें, उबाल लें, तो वो पानी पिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से हर चीज़, बाहर से हर चीज़, बाहर से। अब ये छोटे से टेबल पड़े हुए हैं, ये भी चाइना के, ये देखें ना, ये पाकिस्तान नहीं बना सकता। इसलिए ट्रेड पे ज़ोर नहीं देना चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्री पे जोर देना चाहिए कि ताकि गरीब आदमी को रोज़गार मिले। जिस तरह इमरान खान ने बोला है, सही बोला है कि इंडस्ट्री लगाओ। अब ये इंडस्ट्री जो पहले क्यों नहीं लगती थी, इसलिए नहीं लगती थी कि ये जो बंदा लगाने जाता था उसको मतलब तंग करते थे कि आपने इतना हमें पैसे देने हैं तब आप जाके लगा सकते हैं। अब बिजली का जो होता है अपना दरख्वास्त देता है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, वो उसमें पेचीदा मसाइल थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं ताकि बंदा आसानी से अपना जो भी उसने रोज़गार करना है वो करे इंशाल्लाह। ठीक है। मौलाना साहब ने जो मुतालबा किया इस्तीफ़े का, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब वो गलत कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 1 दिन तो गुजर गया, 1 दिन रह गया, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मतलब इंतशार वाली बात है, अनारकी फैलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज इंशाल्लाह कंट्रोल करेगी। अब हालात अगर खुदा न खास्ता इस नतीजे पे पहुँचे तो फिर ज़ाहिर है उनको हुकूमत इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकें। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो भी है, ये नहीं हम ये मौलाना है, कोई भी है, इसके अलावा जो भी अगर मुल्क में इस तरह की करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। मौलाना साहब ने कहा कि अगर 2 दिन में इस्तीफ़ा ना दिया तो हम किसी पाबंदी के पाबंद नहीं होंगे, और अदारों से भी टकराने की तकरीबन बात हो गई। आज DGI मेजर जनरल असद गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जवाब दिया कि आप किस अदारे की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप?
जनरल साहब ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, कि कोई ऐसा मतलब है कोई कदम ना उठाए कि हम तो जमहूरियत के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, कोई भी हुकूमत हो हम जमहूरियत के साथ हैं और जमहूरियत ही इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। ये तो जमहूरियत अभी नाम आ गया है, ये तो जब पहला दौर था, इस्लामी दौर था, उस वक़्त इसको बोलते थे मुशावरत, शूरा बोलते थे, यानी कि मुशावरत से आगे चलना। अब इन्होंने नया उसका इस्तिलाह में नाम किया है कि जमहूरियत। ये सबसे पहले तो इस्लाम ने दी है, हमारे दीन ने दी है, जिसको मुशावरत कहते हैं। अब जमात वाले हैं जब जाते हैं तो वो आपस में मशवरा करते हैं, जो अक्सरीती मशवरा होता है वो उस पर चलते हैं। ये तो अभी नया नाम इसका आ गया जमहूरियत। जमहूरियत हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने सबसे पहले इसको मुतारफ़ कराया है, शूरा, मशवरा करके आगे चलना। हुकूमती टीम की तरफ से कहा गया है कि अगर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो 30-40 हज़ार लोग आ जाएं और खान साहब इस्तीफ़ा दे दे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अदारों से टकराने की बात की, अदारों से टकराने की कोशिश की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इंतशार फैलाया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जो भी कानून कहता है उस कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं, तो क्या ट्रांसपोर्ट को इस मार्च की वजह से, इस धरने की वजह से क्या मुश्किलात हैं? लोगों के रोज़गार ही नहीं रहा जी, गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं, लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर गाड़ियाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है बड़ी बस, तो कौन के सड़कों पे लेके आता है कि खुदा न खास्ता ये शरपसंद लोग उसको जला न दें, नुकसान न पहुँचा दें, इसलिए लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अब गरीब आवाम को तकलीफ़ है आने जाने में। हम तो ये कहते हैं कि इसको जल्दी फ़ौरन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, या इनको पहले इनके साथ बातचीत करें, बातचीत करके इनको रिक्वेस्ट करें कि आप बराए मेहरबानी आप चले जाएँ, इससे मुल्क का नुकसान है, आवाम को कोई तकलीफ़ है, इसलिए आप चले जाएँ। मौलाना साहब ने तो बयान दिया कि अगर हमसे बातचीत करने के लिए आना है तो जेब में इस्तीफ़ा लेकर आएँ। इस्तीफ़ा अच्छा, ये तो महल है, वो हमारे एक मिसाल है, वो पंजाबी में बिल्ली के ख्वाब से चढ़े, वही मिसाल है। मौलाना साहब के पास अपनी सीट नहीं है, अगर उसने इस्तीफ़ा देना तो अपने बेटे का पहले दे ना। औरों को कहता है इस्तीफ़ा, तो इमरान खान को अपने बेटे का तो पहले इस्तीफ़ा दे वो। ठीक है, ठीक है। तो मौलाना साहब ने बयान दिया अगर हम चाहें तो इमरान खान को जाके घर से गिरफ्तार कर लें, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बहुत मुश्किल है कि जाकर, ये तो फिर कानून ना हुआ ना कि जाकर उसको घर से जो है ना गिरफ्तार कर ले। ये तो उसने इलेक्शन लड़ा है तो वो इधर आया और खुदा ने उसको कामयाबी दी है, इसने तो नहीं दी है ना कि ये वो जाकर उसको कैद कर लेगा तो कि चलो आज वो अदारे मर गए। ठीक है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? ना ना नामुमकिन है कि वो इसको जो है ना कैद करे जाकर, ये खुद जो है ना। मैं तो यही कहता हूँ ये गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है कि जो है ना इमरान खान इसको जो है ना इस्तीफ़ा दे देंगे, 2 दिन में जो है ना इस्तीफ़ा मांग रहा है। लेकिन ये ख़ुद सोच रहे हैं कि इधर कश्मीर का मसला है, आपस में जो है ना मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और इधर इसने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसको सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल नहीं देंगे जी इस्तीफ़ा। ठीक है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं और मौलाना साहब 2 दिन के बाद घर चले जाएंगे वापस। मौलाना साहब ने तो बयान दिया कि अगर हम चाहें इमरान खान को जाके घर से गिरफ्तार कर लें। बस उनकी बातें हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते मौलाना साहब, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। मौलाना साहब के बारे क्या कहना चाहिए? मौलाना साहब ये है कि 2 दिन अपना शो लगाएं और फिर घर जाएं, और क्या है। ये फजल रहमान साहब को हम यही कहते हैं कि आराम से घर चला जा, अपने आप को जो नहीं इज्जत चाहते हो तो घर चला जा, नहीं चाहते तो इधर डंडों को बर्दाश्त कर दे। जिससे जो है ना ये मुल्क के हालात ख़राब हो रहे, एक कश्मीर का इशू बना हुआ है, दूसरा जो है ना ये लोग खुद पाकिस्तान ख़राब कर रहे हैं। तो क्या वो खान साहब से इस्तीफ़ा ले सकेंगे? इस्तीफ़ा इतना, ये इंडिया का भगवान नहीं है कि 25 का लेके ले लें, ये इंडिया का भगवान नहीं है, ये इमरान खान है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं मौलाना को ये मशवरा दे के आप चला जाओ घर से आराम से।